हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 5 चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स. Rohini and Mohini are twin sisters. They love doing the same things. One day when they were making shapes with matchsticks, Shella gave them a challenge. Rohini will make a shape. Mohini has to make the same without looking at it. But she can ask question. Oh, that is simple. Rohini made this shape. कैसी shape है ये? There are 6 sides in this shape. ये क्या हुआ? Hexagon. Mohini, is it closed shaped or an open shape? It is a closed shape. How many sides are there? There are 6 sides. Mohini made this. This also has 6 sides. But is it the same shape? No. Is it a closed shape? Yes. Does it have 6 sides? Yes. But it is not the same. This means कि हम sides को differently भी arrange कर सकते हैं. But it is not as same as one made by Rohini. So Mohini tried again. This time she made this shape. Again, this is not the same. But there are 6 sides. And it is a closed shape too. Is there some way to say in what way these shapes are different? Mohini tried again but got different shapes. Guess and make 2 more shapes Mohini could have made. Mohini is now tired of trying and asked Shella what to do. If you ask for the angles, what the matchsticks make at the corner, you can do it. Oh, so let us look for the angles. तो अब क्या हुआ बेटा, उन्होंने 3 फिगर्स जो हैं उसके एंगल्स को आप देखिए. सारी क्लोज शेप है लेकिन फिर भी उनके एंगल्स में कितना डिफरेंस है. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारे एंगल्स सिमिलर हैं. यहाँ पर कुछ एंगल्स सिमिलर हैं और कुछ एंगल्स डिफरेंट हैं. यहाँ पर सारे एंगल्स फिर से सिमिलर हैं. See how the matchsticks make a small angle, a big angle and a bigger angle. Wow! When angle changes, the shape changes so much. Practice time. Look at the shape and answer. The angle marked in the color is biggest angle. कौन से angle जो marked हैं? That is the yellow color. Yellow color में marked जो angle है वो biggest है. Number 2. Are the angles marked with yellow equal? अब हम सेकंड क्वेश्चन की इन रेड फिगर्स को देखते हैं. इसमें जो येलो कलर से मार्क्ड है, क्या वो सारे एंगल सेम है? तो बेटा ये क्या शेप बनी हुई है यहाँ पर शेप बनी हुई है आपकी पेंटागन. अब पेंटागन में आपका जो है डिवीजन ऑफ एंगल वो किस तरह से होता है. इफ़ इट इज़ अ रेगुलर शेप, तो हर जो आपकी एक हम पॉइंट डिसाइड कर लेंगे और वहाँ से इसको कट करेंगे, है ना. तो जब हमने इसको वहाँ से कट किया बेटा, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं. 1, 2 and 3. ये 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं. अब एक ट्राइंगल के एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180 डिग्रीज. तो 3 ट्राइंगल्स के टोटल का एंगल का टोटल कितना होगा? 540 डिग्रीज. सो 540 डिग्रीज. अब ये पेंटागन शेप है तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे. सो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट, so each angle is 108 degree if the figure is regular. So are the yellow and the green marked are equal? Yes. Is the blue and blue marked are equal? Again यहाँ पर ये क्या है? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइड्स का आपका फिगर है. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So let's see if we can make triangles out of this. 1 2 3 4 and 5. So कितने triangles बन गए यहाँ पर? 1 then 2 then 3 then 4 then 5 and 6. So 180 into 6. 1080. The total of an octagon is 1080. Then we will divide it by, because यहाँ पर कितने एंगल्स हैं? 8 एंगल्स हैं. 8 से हम डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 8 1s are 8, 8 3s are 24, 8 5s are 40. So each angle is 135 degree in an octagon. Fine. 4 different angles are marked in 4 colors. Can you find
other angles which are same as the one marked in red. Mark them in red. Do this for other colors. इसी तरह हमें इन फिगर्स में भी चेक करना है. तो अब आपने देखा किसी भी क्लोज फिगर का बेटा सबसे जो बेसिक फिगर होती है ना वो होता है ट्राइंगल. ट्राइंगल इज़ द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग फिगर. और आप किसी भी फिगर को देखोगे, अगर आपने जैसे ये स्क्वायर है, इसको यहाँ साइड से अगर आपने प्रेशर दिया, दबाया, तो ये दब के रोम्बस जैसी शेप की हो जाती है. इसी तरह रेक्टेंगल को भी अगर आप दबाओगे तो वो भी दब के रोम्बस की शेप का हो जाएगा. पेंटागन को दबाओगे तो उसके एंगल्स चेंज हो जाएंगे. हर एक फिगर के एंगल्स चेंज हो जाते हैं. बस एक ट्राइंगल ही है जिस पे आप चाहे प्रेशर इधर से लगाओ या इधर से लगाओ, कभी भी उसकी शेप चेंज नहीं होती. दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. और आप देखोगे बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स में, स्ट्रक्चर्स में, जब कोई भी हम डैम्स बनाते हैं या ब्रिजेस बनाते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो होता है हमारा ट्राइंगल. So, how many different shapes can you make by changing the angle between the matchstick in each of these? अब आप ये सारी मैच स्टिक्स को इकट्ठा करना और फिर शेप्स बना के देखना. जैसे ये 4 मैच स्टिक्स वाला है, इसी से आप रोम्बस भी बना सकते हो, है ना. 8 मैच स्टिक्स वाला है, इससे आप जैसे उसने स्टार्टिंग में फिगर बनाई थी इस तरह की शेप चेंज करके इस तरह का कुछ बना सकते हो, है ना. ये आपको बना के खुद ट्राई करना पड़ेगा. मैथमेटिक पजल. Make 8 triangles using 6 matchsticks. Try. Take 8 matchsticks. Make a fish like this. Now pick up 3 matchsticks and put them in such a way that the fish now starts swimming in the opposite direction. Did it? इसको आप खुद करने की कोशिश करेंगे. Using 10 matchsticks, make this shape. Pick up 5 matchsticks and put them in such a way that you get the shape of a house. क्या करेंगे? इनको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और ये हमारा घर बन जाएगा. इसको यहाँ पर लगाना होगा और यहाँ जोड़कर ये हमारा पूरा घर बन जाएगा. एंगल टेस्टर. हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स? लेट अस मेक एन एंगल टेस्टर. एंगल टेस्टर क्या होता है? आपने हमेशा अपने कंपास बॉक्स में देखा होगा कि एक ऐसा डिवाइडर होता है, पर ये किसी काम में नहीं आता. बेटा एक्चुअली ये एंगल मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाता है. हालांकि अभी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, बट दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल. तो उन दोनों बहनों ने क्या किया कि उससे कार्डबोर्ड से बना लिया. आप कार्डबोर्ड से भी बनाकर एंगल मेजर करने की कोशिश कर सकते हो. अब अगर ये प्रॉपर एल बन जाता है तो ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री या राइट एंगल. Rohini and Mohini went all around with the angle tester to look for different angles in their class. Rohini tested the angle of the maths book and pencil box. Look at the tester. It has opened like the letter L. This is a right angle. We write it as L. Go around with the tester and draw here those things in which the tester opens like letter L. Are you sure they are all right angles? कौन कौन मिलेगा आपको ऐसा? आपको मिलेगा डोर, है ना. डोर में ऐसा होता है, विंडो बनी हुई है उसमें ऐसा होता है. और भी चीज़ें आप ढूंढ के लिखिए. प्रैक्टिस टाइम. लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स एंड फिल द टेबल. अब हमने बताया कि राइट एंगल जो होता है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता है. वो स्ट्रेट इधर भी हो सकता है, स्ट्रेट इधर भी हो सकता है, ठीक है. बस हमेशा वो ऐसा स्ट्रेट होता है, उसमें ऐसा एंगल रहता है यहाँ पर, ठीक है. तो इससे अब जो भी छोटा होगा, है ना, जो कम खुला हुआ होगा, वो होता है हमारा स्मॉल, एक्यूट, ठीक है. और जो राइट एंगल से बड़े खुलेंगे, बिगर देन द राइट एंगल, बाहर चले गए उसके, वो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है. तो आपको यहाँ पर देखकर मेंशन करना है कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो लेस देन राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है या सेम एज राइट एंगल है. सुखमन मेड दिस पिक्चर विद सो मैनी एंगल्स. देखा हमने कितने zigzag बना रखे हैं उसमें. यूज कलर पेंसिल्स टू मार्क राइट एंगल्स विद ब्लैक कलर, एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल विद ग्रीन एंड एंगल्स विच आर लेस देन अ राइट एंगल विद ब्लू. ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन. ऑल्सो राइट what kind of angle it is. सेम आपको यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल्स करने हैं. Now take a square sheet of paper, fold it in half, fold it once more and press it.
Open the last fold so that the sheet is folded in half. Take one corner and fold it to the dotted line. On the paper, you will find lines making a right angle, an angle less than right angle, and an angle more than right angle. सारे तरह के angle आपको इसमें मिल जाएंगे. Same, we can make angles with the help of our body also. Body joints move in different directions. तो आप अपने हाथ हिला के अलग अलग poses बना के different angles को बना सकते हो. Try them out. It's fun. Draw them in your notebook using stick drawings like these. My angle dance shows the way. When I see flowers for making honey, I want to tell other bees to show them the way I start dancing. My dance shows the angle between the sun and the flower. अब आपने देखा ये कैसे पता चलता है बाकी की हनी बीज को कि भाई कौन से डायरेक्शन में जाके फ्लावर्स में से हमें नेक्टर को लेना है. तो ये जो बी है ये बता रही है मैं जब डांस करती हूँ तो सन और फ्लावर के एंगल से बीज को पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में आना है. एक्टिविटी, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन. अब आपने देखा है गार्डन में जो लीव्स होती है वो बंच में होती है, ऐसे करके लाइन होती है, उसमें अलग अलग ऐसे करके लीव्स लगी होती है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई इस तरह से लगी होती है अरेंजमेंट में, कोई इस तरह से नहीं लगी होती, कोई ऐसे लंबी सी डंडी होती है उसमें अकेला ही पत्ता होता है इतना बड़ा, कोई और होती है ऐसी जिसमें बहुत सारी ऐसी डंडियाँ निकली होती हैं और उनमें फिर पत्ते लगे होते हैं, है ना, ऐसे करके होता है. तो इन्होंने क्या कहा कि आपको जाकर लानी है ऐसी लीव्स, उनमें लगाना है वाटर कलर और उसके इम्प्रिंट लेने हैं और फिर चेक करना है कि उसमें जो एंगल बन रहे हैं वो कौन से एंगल बन रहे हैं. एक्यूट एंगल बन रहा है या ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, स्टेम से उनका कैसा एंगल बन रहा है, ये आपको चेक करना है. ऑल्सो नेचर में और भी जगह बेटा बहुत सारी जगह पर हमें एंगल्स दिखेंगे. जैसे टेबल जो आपकी वॉल के सहारे लगी होती है उसके और टेबल के बीच में एक राइट एंगल बना होता है. जब आप पेंसिल से लिखते हो तो पेंसिल और आपकी कॉपी के बीच में जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का यानी कि लेस देन राइट एंगल होता है ना. इसी तरह जब आप चलते हो तो आप एकदम स्ट्रेट चलते हो ना, स्ट्रेट चलते हो ग्राउंड से, तो आप 90 डिग्री का एंगल बना के चलते हो. उसी तरह बर्ड्स हैं, वो जब अपनी बीक खोलती हैं तो आपने देखा होगा जब हम मुंह खोलते हैं खाना खाने के लिए तो पूरा ऐसे पूरा मुंह थोड़ी खोलते, थोड़ा सा ही खोलते हैं ना, वो थोड़ा सा मुंह जो हम खोलते हैं वैसे ही जब बर्ड्स बीक खोलती हैं वो एक्यूट एंगल होता है यानी कि लेस देन 90 डिग्री. Look for the birds which have beaks with angles smaller than a right angle. In the picture, mark angles between two branches. Which two branches have biggest angle? You know there are angles in the letters of our names too. In my name there are 11 angles. There are also 10 angles less than a right angle. अब सिर्फ S की हम बात करें, उसने सिर्फ S अगर हम बनाया है तो यहाँ पर देखो आप ये सारे all these angles are right angle, है ना सारे. ऐसे ही हम A की बात करें तो यहाँ पर आप देखो ये क्या है, ये है लेस देन 90 डिग्री और ये वाला एंगल मोर देन 90 डिग्री, ये वाला भी मोर देन 90 डिग्री. अब T 90 डिग्री है ना. राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट द एंगल्स. Put 10 math magic books on top of each other. Keep one book slanting to make a slide. Now do this with 6 books. Roll a ball from the top. From which slide does the ball roll down faster? किसमें से गिरेगी? जो ज़्यादा ऊंची होगी उससे एकदम तेजी से नीचे आएगी. Which slide has a smaller angle? अब यहाँ देखो आप किसकी हाइट कम है, इस वाली की, और किसकी स्लाइड लंबी है, इस वाली की. Which slide has a larger angle? किसका एंगल बड़ा है, इस वाली का, है ना. Which slide do you think is safer for the little boy? कौन सी स्लाइड सेफर है लिटिल बॉय के लिए, जो सडनली एकदम से डाउन लेकर आ रही है उसको या जो धीरे धीरे लेकर आ रही है, ये वाली. Changing shapes. Things you need, use your matchsticks, piece of rubber tube, use in cycle walls. अब जैसे मैंने आपको बताया था शेप्स के बारे में कि ट्रायंगल इज़ द मोस्ट स्टेबल शेप, ये आपको कैसे पता चलेगा, इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चलेगा. इसमें आप लोगे मैचस्टिक्स लोगे एंड देन यहाँ पर हम ले रहे हैं थोड़े से ट्यूब्स, कोई भी आप जो स्ट्रॉज यूज़ करते हो वो भी यूज़ कर सकते हो. पुश 2 मैचस्टिक्स इनटू ईच एंड ऑफ अ ट्यूब एंड देन add more matchsticks to form a triangle. ये ट्रायंगल आपका बन गया है यहाँ पर. अब आप क्या करोगे, इसको पुश करने की कोशिश करोगे पर ये पुश नहीं होगा, दबेगा नहीं किसी भी साइड से. अब इसी तरह हमने और स्टिक्स को जोड़ के यहाँ पर स्क्वायर, पेंटागन और हेक्सागन बनाए, लेकिन ये भी इनको हम जब पुश कर रहे हैं तो ये अपनी शेप्स को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं.
Find out how many angles are there in each of these shapes. कैसे shapes को count करोगे? Angles को कैसे count करते हैं? यहाँ से. This is 1 angle, 2, 3, 4 and 5. 5 angles हैं इसमें. इसी तरह आप इनमें count कर सकते हो. Push each shape downwards with the tip of your finger. Does the angle change when pushed down by the finger? Find out and write your results in the table given. आप देखोगे ये भी push होगा, ये भी push होगा, ये भी push होगा, ये push नहीं होगा. ये most stable structure है इसीलिए. Shapes and towers. Look for triangles in the pictures below. From the activity changing shapes, can you guess why triangles are used in these towers and bridges, etc.? Look around and find out more places where triangles are used. Zeenat, your watch does not have digits. How do you read time? I just see the angles. See, when hands make a right angle, I know it is 9 o'clock. There are many times in a day when hands of a clock make a right angle. Now you draw some more. आप बना सकते हो. जैसे ये 9 o'clock उसने बनाया, ऐसे ही हम यहाँ पर 3 o'clock बना सकते हैं. This is 3 o'clock. और क्या बना सकते हैं हम? जब 6 बजने वाले होते हैं. एंड जब 3 o'clock होते हैं और 3:30 हो जाते हैं, तब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है. इसी तरह दिन में बेटा बहुत सारे टाइम आपको ऐसे मिलेंगे. ये तो मैंने आपको मेन बता दिए हैं. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सब के एंगल्स का नाप टेंटेटिवली अपने हिसाब से लिखना है. ऑल्सो आपको यहाँ पर टाइम भी लिखना है कि यहाँ पर कितने बज रहे हैं. जैसे कि यहाँ 5 पर मिनट की सुई है, तो 5 5 जा 25 मिनट्स हुए हैं, और यहाँ 7 बज चुके हैं, तो ये कितना हो गया 7:25. Draw the hands of a clock when they make an angle which is less than right angle. Also write the time. Okay, these are the answers of the previous puzzle. Degree clock. Appu and Kittu are playing carom board. Appu hit the striker. It comes back at the same angle. In the picture, 3 points A, B, C are shown. Draw a line to show from which point Kittu should hit to get the queen. अब आप यहाँ देखो, उसने क्या देखा कि जिस पॉइंट से जाता है उसी पॉइंट पर वो रिफ्लेक्ट होता है. तो अगर वो C से जाएगा, तो C पे रिटर्न भी आएगा, B पे जाएगा, B पे रिटर्न आएगा, A पे जाएगा, तब इस पे रिटर्न आएगा. तो उसे कौन से पॉइंट से स्ट्राइक करने की ज़रूरत है? A से स्ट्राइक करने की ज़रूरत है. Activity making a degree clock. Cut a circle out of paper, fold it into half, fold it once again into quarter and fold it once more. So this smaller one, this is the acute angle less than 90 degree. क्योंकि यहाँ 90 degree ऑलरेडी बन गया था, उसको भी इन्होंने फिर बाद में कट कर दिया, एक और बार फोल्ड कर दिया. तो ये है less than 90 degree, 90 degree, more than 90 degree and this is full circle. ठीक है. So this is your degree clock. Can you guess how many degrees is the angle which is half of a right angle? Half of a right angle का क्या मतलब है बेटा? Half. Of मतलब multiply. Of right angle. Right angle मतलब 90 degree. Half of a right angle कितना हुआ? 45 degrees. 1/3 of right angle. अब ये कैसे करेंगे? 1/3 of right angle. Again 3 1s are 3, 30. So 30 degree is the answer. 2 times मतलब 2 times of 90 degree is equal to 180 degrees. Angles in a paper aeroplane. Take a square sheet of paper, fold it in half and open it. Fold the corners to the center. Your paper looks like this. Fold the green triangle such that the P touches Q and then fold the top 2 corners of the rectangle along the dotted lines. Your paper will look like this, and there is a small triangle in the picture which has to be folded up. Turn it over and fold it in half along the dotted line. Now to make a wing, fold the yellow edge over the red edge. Turn it and do the same on the other side as well. The plane is ready to fly. How well does it fly? Find the angles of 45 degree and 90 degree when you open your plane. We can also make angles with yoga. This is 90 degree, then less than 90 degree,
then more than 90 degree. Again, this one is more than 90 degree and the front one is less than 90 degree. The D game. You can play the D game with your friends. You draw an angle, your friend will guess the measure of that angle. Then you use your D to measure it. The difference between the measured angle and guess will be your friend's score. जिसका भी score कम होगा, that person will be the winner. So this is how we end the chapter of shapes and angles. If there is any confusion, you can write in the comment section and I will reply it as soon as possible. Thank you for listening to me, children. Keep learning, keep asking.